Good afternoon, everyone. Am I audible to everybody? Good afternoon. The class was actually rescheduled on a short notice, and I really apologize for the same. I had some emergency for which I had to go in the afternoon, so please cooperate. Um, I have shared chapter 10 PPT with you also yesterday in the WhatsApp group. Once we are done with all the classes with the entire syllabus, I will share the all the PPTs, I mean, once again, because some of you have joined the group late. So no problem, I'll be sharing it once again after we are done with the syllabus. Okay, now let's start with another chapter, which is the last chapter of Unit 3, that is organizing. Unit 3 हमने start किया था, तो उसमें there are 3 chapters: planning, decision making, and organizing. So we have already done planning and decision making. Now we have to do organizing. अब organizing से आप लोग क्या समझते हैं? Tell me. मतलब organizing का अगर हम layman language में बात करें तो organizing का मतलब होता है कि are you able to see my screen? Yes, everybody? Okay, it's visible, I think. Now I was saying कि organizing का मतलब होता है चीजों को organize करना. अब वो चीज क्या हो सकती है? वो आपके physical resources हो सकते हैं, land, capital, आपके social resources हो सकते हैं, labor. अब हम इन चीजों को क्यों organize कर रहे हैं? We are organizing them because we want to accomplish our organizational goals. ओके, तो अब जो भी हमने प्लानिंग की, जो भी हमने डिसीजंस लिए, स्ट्रैटेजिक डिसीजन, शॉर्ट टर्म डिसीजंस, लॉन्ग टर्म डिसीजंस, नाउ वी आर गोइंग टू ऑर्गेनाइज देम इनटू वन single, I mean, we are going to organize them, we are going to departmentalize them so that all the activities they move towards the attainment of one common unified goal. Okay, so इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे मीनिंग, एलिमेंट्स, रोल, प्रोसेस, प्रिंसिपल्स, ऑर्गेनोग्राम्स. ये आपके लिए नया टॉपिक है. बाकी तो आई थिंक आप सबने ये रेस्ट ऑफ द चैप्टर्स, जो रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स यू हैव ऑलरेडी डन इन योर क्लास 12th, लाइन ऑर्गेनाइजेशन, लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, ये सब आप ऑलरेडी कर चुके हैं. सो स्टार्टिंग विद ऑर्गेनाइजिंग. ऑर्गेनाइजिंग का देखिए मैंने यहाँ पर ना 3 ऑथर्स की डेफिनेशन दी हुई है. सो यू हैव टू कोट दिस डेफिनेशन. आपको इस चैप्टर में से कोई भी क्वेश्चन आएगा, मतलब ऑर्गेनाइजिंग के बारे में पूछे, प्लानिंग, प्रोसेस, प्रिंसिपल्स, फैक्टर्स, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, कुछ भी पूछते हैं, तो यू हैव टू मेंशन द डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनाइजिंग फर्स्ट ऑफ ऑल. Definition by the author, then definition in your own words, and then jump on to the next, like what is being asked from you people in the exam. I hope I am clear. मैं आपको हर क्लास में ये बात डिटेल में समझाती हूँ कि आपसे कुछ भी अगर पूछा जा रहा है तो सबसे पहले आपको डेफिनेशन देना होगा कि आप उस टर्म से समझते क्या हैं. ओके, सो गोइंग ऑन टू द कुंट्ज एंड ओ'डonnell definition. It is basically you are defining, you are establishing that authority responsibility relationship. इसमें हम कोऑर्डिनेट करते हैं वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली, साइडवेज. किसको? ऑर्गेनाइजेशन को. ऑर्गेनाइजेशन में प्रेजेंट लोगों को, रिसोर्सेस को. सो वी आर कोऑर्डिनेटिंग डिफरेंट aspects, departments, divisions, people, resources, men, material, everything in order to attain one unified common goal. I hope I am clear with the definition now. Okay, so basically हमने इसमें क्या किया? We used division of work, we used various principles given by Henry Fayol so that the best can be done in an efficient, systematic, positive and coordinated effort for the accomplishment of the personal goals as well as the organizational goals. तो इस डेफिनेशन से व्हाट यू थिंक, आप क्या समझते हैं एलिमेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, कि क्या फीचर्स हैं? एक ऑर्गेनाइजेशन है, मैंने आपको बता दिया कि उसमें हम डिवीजन करते हैं, अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप को डिफाइन करते हैं. सो व्हाट यू थिंक कि what is the definition, I mean, what are the basic features of organizing? See, first of all we are talking about departmentalization and compartments. अब SOL है, SOL वन ऑर्गेनाइजेशन है. अब हमने इसमें क्या किया?
हमने इसमें अलग अलग डिपार्टमेंट्स बना दिए, इंग्लिश का, कॉमर्स का, विद इन कॉमर्स हमने बीकॉम ऑनर्स, बीकॉम बना दिया, विद इन बीकॉम हमने वेरियस सब्जेक्ट्स के लिए वेरियस टीचर्स अलॉट कर दिए। तो ये क्या हुआ, ये आपने डिपार्टमेंटलाइज कर दिया। नाउ अंडर द एजेस, अंडर द अम्ब्रेला ऑफ एसओएल, you have different departments, different courses, different teachers for different subjects. अब I am handling BOM, so I will be restricted only for the attainment of goals related to BOM. Some other teacher is allotted English, Hindi, literacy, literature, etc. तो इस तरह से हम proficiency के according अपनी गोल्स को फर्दर बाइफरकेट करके रिस्पेक्टिव टीम्स को अलॉट करते हैं। बिकॉज वन मैन आर्मी तो है नहीं कि मैं आपको बॉम्ब भी पढ़ा दूंगी, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, साइंस सब कुछ मैं आपको पढ़ा दूंगी, साइंस तो नहीं होती, मतलब इट्स नॉट पॉसिबल ना। तो हम अपने एक कॉमन गोल को बाइफरकेट कर लेते हैं डिफरेंट चैनल्स। आई होप आई एम क्लियर विद द डेफिनेशन नाउ। नेक्स्ट इज योर चेन ऑफ कमांड। ऑफ कोर्स आपका चेन ऑफ कमांड है, आपका चेन ऑफ कंट्रोल है। इट फ्लोज फ्रॉम हायरार्की, आई मीन टॉप टू बॉटम। टॉप लेवल मैनेजमेंट फर्दर अपने मिडिल लेवल मैनेजमेंट को डिपार्टमेंटलाइज कर रहा है, डिपार्टमेंट हेड्स अपॉइंट कर रहा है, डिवीजन मैनेजर्स अपॉइंट कर रहा है। दे आर फर्दर अलॉटिंग द टास्क टू द लोअर लेवल मैनेजमेंट, जिसमें आपके डेली वेजर्स, लेबरर्स, एम्प्लॉइज आ जाते हैं। ओके, तो अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप हर लेवल पर क्रिएट हो रही है। सो देयर इज अ कंट्रोल। आई बीइंग द टॉप लेवल मैनेजमेंट, मैं सबको कंट्रोल कर रही हूँ, बट मैं सबको हर लेबर के पास तो नहीं जा सकती ना। तो उन लेबर को कौन कंट्रोल कर रहा है, उनके रिस्पेक्टिव सुपरवाइजर्स, क्लर्क्स। उन क्लर्क्स को कौन कंट्रोल कर रहा है, डिपार्टमेंटल हेड्स। उन डिपार्टमेंट हेड्स को कौन कंट्रोल कर रहा है, टॉप लेवल मैनेजमेंट। ओके, तो यहाँ पे आपका कंट्रोल और कमांड की एक हायरार्की है। देन सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है जब आप सब कंट्रोल अपने हाथ में रखते हैं, पावर्स को अपने हाथ में रखते हैं। और डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है जब आप उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। अल्टीमेटली यू विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग, बट अगेन मैं सब कुछ तो नहीं कर पाऊंगी ना, तो मैंने डिसेंट्रलाइज कर दिया, मैंने अपनी पावर्स, अपनी अथॉरिटी जो है डिस्ट्रीब्यूट कर दी। ये चीज आपने क्लास 12th में भी करी होगी कि डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी कैन बी डन बट डेलीगेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन नॉट बी डन। कल को कोई भी मिसहैप होता है तो मतलब ऑफ कोर्स जो भी रेपरकशंस होंगे वो आई हैव टू फेस, पर गुडविल किसकी खराब हो रही है, गुडविल जो टॉप मोस्ट अथॉरिटी होती है, जो फर्म होती है, उसकी गुडविल खराब होती है। ओके, देन वी हैव फॉर्मलाइजेशन ऑफ इवेंट्स, वी हैव वर्क स्पेशलाइजेशन। आई मीन each person is allotted the task in which he or she is professional, he or she is proficient. Okay, उसकी proficiency के according, why am I not being given उर्दू? मुझे इंग्लिश, MA इंग्लिश पढ़ाने को क्यों नहीं दिया, मुझे MA हिंदी पढ़ाने को क्यों नहीं दिया? क्योंकि वो मेरा एरिया नहीं है, वो मेरी प्रोफिशिएंसी नहीं है। और अगर मैं वो पढ़ाऊंगी तो डेफिनेटली मैं उतना आउटपुट नहीं दे पाऊंगी, है ना। तो व्हाट यू हैव टू डू, आई मीन एक ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, जब भी पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट करती है तब वो उसमें उनकी प्रोफिशिएंसी के अकॉर्डिंग वेरियस डिपार्टमेंट्स को वो फर्दर अलॉट करती है उनके रिस्पेक्टिव टास्क। ओके, सम स्टूडेंट्स आर आस्किंग मी व्हाट्सएप ग्रुप लिंक, सो आई एम पोस्टिंग माय नंबर वंस अगेन। Please send hi on this number and after the class I will add you people into the group. Okay, next, moving on to the next part, we have role of organization. हम जब से organization की बात कर रहे हैं, but what is the role of organization? To facilitate management action. Management के action को facilitate करना। मैंने decision ले लिया कि short term goals के regarding भी और long term goals के regarding भी I have taken the decision, but उसको फैसिलिटेट कौन करेगा, उस डिसीजन को एक्शंस में कन्वर्ट कौन करेगा, ऑर्गेनाइजेशन। इट हेल्प्स टू एनकरेज द एफिशिएंसी। हाउ, व्हेन आई नो कि सैटरडे को 12 बजे मुझे बॉम्ब की क्लास लेनी है, तो आई विल अरेंज माय वर्क अकॉर्डिंगली, बीइंग द फैकल्टी। I mean, I know my schedule beforehand, you know your schedule beforehand, and we all will be there to produce maximum results. I hope I'm clear to you.
जब हम एफिशिएंसी की बात कर रहे हैं, देन आई बीइंग अ मेंबर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, मुझे पहले से पता है कि what all efforts had to be put in, where are all the resources, what do I have to do in the accomplishment of task. So definitely it's going to increase the effectiveness and the efficiency. Okay, the next part is job satisfaction. कोई chaos नहीं है, कोई conflicts नहीं है, सब clarity है मुझे, तो definitely it's going to give me job satisfaction. And on top of it, when I am being allotted the task in which I am proficient, okay, तो definitely वो क्या होगा, मैं उसमें बेटर आउटपुट जनरेट कर पाऊंगी. करेक्ट. Okay. The next part is communication is being done. Then optimum use of organizational resources are there. Optimum use इसीलिए है क्योंकि optimum usage इसलिए है because optimum usage आपके resources की इसीलिए है because we are planning in advance what is to be done and how it is to be done. Okay, so we have this optimum uses of organizational resources. Okay, then moving on to the next part, we have process of organization, which is of the very crucial. आपको organization as a process या steps in organization process पूछा जाएगा, तो you first of all have to define the organization, give its features. मैं यहाँ पे लिख देती हूँ how to attempt this answer. ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो फर्स्ट पार्ट डिफाइन ऑर्गेनाइजिंग, देन गिव इट्स फीचर्स. जस्ट अ सेकेंड. थर्ड पॉइंट में जो मैंने स्लाइड में मेंशन किया हुआ है वो डायग्राम बनाइए. फोर्थ पॉइंट में एक्सप्लेन द स्टेप्स एंड फिफ्थ पॉइंट में कंक्लूजन. This will be your 7 to 8 marks question. I hope I'm clear with how you have to attempt the answers. Okay. Just a minute. Some students have put that in the messages. Okay, moving on to the next part, that is first step is fixing the objective. जब भी मैं organizing कर रही हूँ तो सबसे पहले तो मुझे ये पता होना चाहिए ना कि मुझे organizing करना किस चीज का है. मेरे ऑब्जेक्टिव्स तो मुझे क्लियर होने चाहिए कि व्हाट आई वांट टू अटेन, व्हाट आर माय गोल्स, व्हाट आर माय ऑब्जेक्टिव्स, देन ओनली आई कैन अटेन द टास्क. देन आई हैव टू आइडेंटिफाई द एक्टिविटीज रिक्वायर्ड फॉर अचीविंग द ऑब्जेक्टिव्स. what all activities what all activities are needed on my part, on the organization part, on the various on the part of various departments for achieving the activities. Now what am I going to do? I'm going to group those activities. Okay, I will after grouping the activities, मैंने different departments और groups create कर लिए. अब उन different departments में I am fixing the responsibility of each employee. I am defining the responsibility. I am delegating the authorities to those respective employees. I am defining the relationship, that is authority responsibility relationship between superior and subordinate. I am providing the resources to the subordinates, to the employees of my organization to attain the organizing to attain this objectives, and then a coordination has to be attained. अब आप एक स्टेप मुझे बता सकते हो, जैसे मैंने आपसे ऑर्गेनाइजेशन का ऑर्गेनाइजिंग का मैंने आपसे पूरा डिस्कस कर लिया कि प्रोसेस क्या होता है. हर लेवल पे आप मुझे ये बता सकते हो कि क्या एक एलिमेंट है विच इज रिक्वायर्ड एट एवरी स्टेप ऑफ ऑर्गेनाइजिंग. क्विकली टेल मी, वो कौन से वो कौन सा एक पर्टिकुलर एलिमेंट है जो हर ऑर्गेनाइजिंग के हर स्टेप पे आपको चाहिए. मैंने आपसे इतने सारे स्टेप्स डिस्कस करे हैं, प्लीज टेल मी कि वो एक कौन सा स्टेप है जो हर पार्ट पे आपको चाहिए.
Come on, think quickly. जल्दी बताओ. ओके, मैं आपको बताती हूँ, वो है कम्युनिकेशन. अब कोई इसके कंटेक्स्ट में मुझे बता सकता है कि व्हाई कम्युनिकेशन इज नीडेड एट एवरी स्टेप. मैंने आपसे इतने स्टेप्स डिस्कस करे, फिक्सिंग द ऑब्जेक्टिव्स, setting the priorities, defining the responsibility relationship, everything. So what do you think, why communication is essential at each and every step? Because ultimately ये ऑर्गेनाइजिंग के स्टेप्स कौन किस पर इंप्लीमेंट हो रहे हैं? ये ऑर्गेनाइजिंग के जो स्टेप्स हैं ये एम्प्लॉयज कर रहे हैं. एंड अनलेस एंड अंटिल एम्प्लॉयज आर क्लियर अबाउट what is to be done, by whom it is to be done, कौन क्या करेगा, कैसे करेगा, जब तक उनको ये क्लैरिटी नहीं होगी तब तक वो अपने ऑब्जेक्टिव्स, वो एक ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अटेन नहीं कर पाएंगे. आई होप आई एम क्लियर. Got it? So this is a communication that is required at each and every level of the organizing process. Okay. Next part is principles of organization. जब हम organization की बात करते हैं, organizing activity की बात करते हैं, तो there are few principles that are required. There are few factors that are to be kept in mind while, I mean, fixing the responsibilities, establishing the relationship. Okay. अब वो क्या है? सबसे पहले आता है आपका वर्क स्पेशलाइजेशन. जब हम टास्क अलॉटमेंट करते हैं तो वी मेक श्योर दैट द टास्क इज बीइंग राइट टास्क इज अलॉटेड टू द राइट पर्सन एट द राइट टाइम, so that there is optimum utilization of resources. Okay, I hope I am clear. Next part is your authority. We have to take care of the authority part. Authority तो आप delegate कर सकते हो, but आप responsibility delegate नहीं कर सकते. और एक particular task को complete करने के लिए आपको कितना authority delegate करना है, you have to be very cautious of that factor too. Because ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने authority ज़्यादा delegate कर दी और उसके बाद the employees are, employees are taking the advantage of that thing, or they are not doing the task as per the required objectives. Okay, fine. Now the next point is your chain of command. I have already discussed that the command flows from top to bottom. Vertical hierarchy होती है जिसमें what you do is top level management जो है वो command next level of management पर अपना exert करती है. Then the next part is your delegation of authority and there is span of control. Moving on to the next part, अगर हम एक organization की structure को define करते हैं तो organization का एक hierarchy होती है. So it identifies job, function and reports within the organization. Now within an organization we have traditional organization, we have functional organization, we have divisional organization. We were talking about, am I audible? Okay, so now moving on to the next part, that is your एक second beta. Okay, talking about the first part, which is functional structure. Now functional structure is based on the organization which is divided into smaller groups. अब आप ये diagram देखिए, इस diagram में क्या है? We have got
various functions. There is this top level management managed by CEO. Then we have marketing department, we have sales department, and we have services department. अब marketing, sales और services department में class about the organization structure. The first one is your functional, where we have different department as per their functions, marketing, sales and services, and within each department there are further subdivisions which is marketing, sales and services. Okay, तो हमने क्या किया, हमने functions के basis पे small groups create कर दिए और उनको उनके specific tasks allot कर दिए. Okay, now next part is your divisional. Again we have created the division according to the horizontal objectives. Fine. For example, आपने कमर्शियल डिवीजन करा, आपने रेजिडेंशियल डिवीजन करा, आपने गवर्नमेंट डिवीजन करा, जिससे कि आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टी से रिलेट कर सके. मार्केट बेस्ड हमने स्ट्रक्चर क्रिएट कर दिया कि हमारे प्रोडक्ट की कमर्शियल में क्या डिमांड है, रेजिडेंशियल कंज्यूमर में क्या डिमांड है और गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग हमारे को क्या रेगुलरिटीज फॉलो करनी है. Now this is a very common structure which is a blend of functional and the projectionalized organizational structure, जिसमें again we have marketing, sales and services, three departments which are further bifurcated into electronics divisions, home goods division and yummy snacks division. For example, हमारी we are dealing with the electronics also, we are dealing with the home goods also and we are dealing with the snacks also. So हमने अपनी organization में तीन divisions create किए, इलेक्ट्रॉनिक्स, गुड्स एंड यमी स्नैक्स. अब उन तीन स्नैक्स के लिए तीन अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं. तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स को भी देख रहा है, एक डिपार्टमेंट विद इन मार्केटिंग एक डिवीजन इलेक्ट्रॉनिक्स को देख रहा है, एक डिवीजन होम गुड्स को देख रहा है और एक डिवीजन स्नैक्स को देख रहा है. ओके, देन कम्स योर फ्लेटार्की. फ्लेटार्की क्या होता है, जैसे ये फंक्शनल स्ट्रक्चर होता है, फ्लैट स्ट्रक्चर होता है विच अलाउज फॉर मोर डिसीजन मेकिंग अमंग ऑल द लेवल्स. जैसे आपका इंक्यूबेटर या इनोवेशन प्रोग्राम अगर आपने सुना हो, स्टार्टअप्स के केस में हर कोई एम्प्लॉयर होता है बिकॉज एम्प्लॉयर इज ऑल्सो लर्निंग. सो इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग अ हायरार्की इट क्रिएट्स अ फ्लैट टीम्स. Okay, so instead of creating a hierarchy, it creates a flat team. I hope I'm clear with this. The next part is your developing the organization structure. जब हम एक organization structure को develop करने की बात करते हैं तो which are all other factors that we have to keep in mind while developing an organization structure. Somebody has asked a question. Just a minute. Give me 1 point. Give me 1 minute. आई एम सॉरी, मेरे पास हिंदी मीडियम में तो पीपीटीज नहीं है, तो आप लोग हिंदी मीडियम की जो बुक मार्केट में अवेलेबल है प्लीज उसको रेफर कर लीजिए. ओके, so now moving on to the next part, which is developing the organization structure. First of all, we have to follow the rules. There is no single organization that does not follow the rule for its operation. Rules, regulations, processes, policies and procedures are required at all the levels for all the departments, for all the divisions, because it is the sorry, मेरा म्यूट था. I was discussing this developing the organizational structure. अगर हम rules हम define करते हैं तो it becomes very easy for any organization to distribute the work.
delegate the authority, establish the authority responsibility relationship, and it further helps an organization to evolve over the period of time. Okay, it makes the communication easy among different departments, different divisions, or this further help me to outline my governance plan. गवर्नेंस प्लान को समझते हो क्या होता है? गवर्नेंस प्लान क्या होता है? गवर्नेंस प्लान होता है आपका, जैसे आप फाइनल ईयर में जब ऑडिटिंग पढ़ोगे तो ऑडिटिंग एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस एक सब्जेक्ट आएगा। गवर्नेंस प्लान होता है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस टर्म से ये इमर्ज हुआ है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस मींस गवर्निंग द कॉर्पोरेट अफेयर्स, कि किसी भी एक कंपनी को चलाने के लिए एक कोड ऑफ कंडक्ट क्या है, what all rules have to be complied by, गवर्नमेंट की तरफ से, लॉ की तरफ से, इंडस्ट्री की तरफ से, एक ऑर्गेनाइजेशन का अपना कॉर्पोरेट गवर्नेंस कल्चर क्या है। ओके, तो अगर आपकी एक इफेक्टिव ऑर्गेनाइजिंग टास्क होगा तो इट विल हेल्प यू इन फर्दर maintaining this governance in your organization, and higher the governance, lesser would be the task of auditor. Okay, then what factors do I have to keep in mind while developing or designing the organization structure? जब हम organization structure को डिजाइन करने की बात करते हैं तो सबसे पहले 6 फैक्टर्स हैं जिनको हमें ध्यान में रखना चाहिए। First, we have to keep in mind the strategy. We have to keep in mind मतलब मेरा ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है, मेरी कंपनी का साइज क्या है, मेरी कंपनी की एज क्या है। आई मीन आपने क्लास 12th में इकोनॉमिक्स में वो ग्राफ किया होगा ना, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल अगर आपने की होगी तो मेरी स्टार्टिंग एज है, मेरी ग्रोथ वाली स्टेज है, मेरी मेच्योरिटी वाली स्टेज है, या मेरी डिप्रेशन वाली स्टेज है। तो अकॉर्डिंगली कंपनी की एज डिफाइन करेगी कि कंपनी को ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर किस तरह डिफाइन होगा। जैसे सपोज आपकी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की स्टार्टिंग की एज है, तो अभी तो आपको पूरा अपने टीम को ओरिएंटेशन देना है, हाउ इट इज टू बी डन, व्हेन इट इज टू बी डन। मैच्योरिटी है तो एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉय दोनों एक लेवल पे हैं, दे बोथ हैव दिस अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट इज टू बी डन एंड हाउ इट इज टू बी डन। तो आपके लिए ऑर्गेनाइजिंग को इम्प्लीमेंट करना बहुत ईजी हो जाएगा। ओके, then specialization, environmental factors, I have already discussed। business environment chapter जब मैंने आपको पढ़ाया था, chapter number 6, उसमें मैंने आपको माइक्रो एनवायरमेंट और मैक्रो एनवायरमेंट बताया था, इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरमेंट बताया था। तो हमें एनवायरमेंट के फैक्टर्स को भी कंसिडर करना है बिफोर वी मूव अहेड, कि गवर्नमेंट के क्या थ्रेट्स हैं, इंडस्ट्री मुझे क्या चैलेंजेस दे रही है, टेक्नोलॉजी कितना फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में चेंज हो रही है, कंज्यूमर की क्या नीड्स हैं, सप्लायर्स को क्या चीज चाहिए, इन्वेस्टर्स को कितना फेयर रिटर्न देना है, एम्प्लॉइज और उनकी फैमिली को कैसे खुश रखना है। गॉट इट? तो ये सारे फैक्टर्स आपकी ऑर्गेनाइजिंग में आपको ध्यान रखने होंगे। डिवीजन ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइजेशन, ये आपने किया होगा, हेनरी फ्योल का फर्स्ट प्रिंसिपल है ये, डिवीजन ऑफ लेबर। मतलब डिवाइड एंड रूल नहीं है, डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब है कि हम एक ऑर्गेनाइजेशन में जब भी टास्क अलॉटमेंट करते हैं, ड्यूटीज को डिफाइन करते हैं, तो वी ऑलवेज मेक इट अ पॉइंट, वी ऑलवेज मेक श्योर कि जो भी टास्क डेफिनेशन हो दैट शुड बी एज पर द efficiency, as per the proficiency of the labor. Okay, just a second. मतलब उनका क्या एरिया है प्रोफिशिएंसी का, अकॉर्डिंगली दैट हैज टू बी केप्ट इन माइंड। जैसे कि मैं अगर मेरा अगर स्पेशलाइजेशन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट है तो आई शुड बी गिवन दैट सब्जेक्ट। मेरा स्पेशलाइजेशन मैथ्स है तो आई शुड बी गिवन दैट सब्जेक्ट टू टीच टू द स्टूडेंट्स। ओके, नेक्स्ट इज उससे क्या होगा कि आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लो रहेगी, ऑटोमेटेड होगा, वर्कर्स अपनी एक्सपर्टीज और स्किल्स के अकॉर्डिंग काम करेंगे, एंड इट डेफिनेटली हेल्प्स टू सेव योर टाइम, मनी एंड एफर्ट। Somewhere it will stop my creativity and innovation, and somewhere it brings monotony to me also। ठीक है, मैं हर साल वही सिलेबस वही सब्जेक्ट बार बार पढ़ा रही हूँ, तो आई एम नॉट कॉन्ट्रीब्यूटिंग एनीथिंग न्यू टू द ऑर्गेनाइजेशन।
ठीक है, हर टीचर का, हर एम्प्लॉय का टास्क करने का तरीका अलग होता है. सो वी जनरली, मतलब जनरली हम लोग की ये प्रैक्टिस होती है कि प्रोफिशिएंसी के अकॉर्डिंग टास्क अलॉटमेंट हो, बट देन वी हैव दिस जॉब रोटेशन ऑल्सो. जॉब रोटेशन समझते हैं? जॉब रोटेशन आपका अपवर्ड भी हो सकता है, डाउनवर्ड भी हो सकता है और साइडवेज भी हो सकता है. जॉब रोटेशन में बेसिकली यही किया जाता है, जैसे ट्रांसफर्स हो गए, प्रमोशंस हो गए, डिमोशन हो गए, या दूसरे डिपार्टमेंट में आपका ट्रांसफर हो गया, विच हेल्प्स टू ब्रेक द मोनोटनी. ओके, now moving on to the next part, we have organizational organogram. This is very very important. Organogram क्या होता है? Organogram basically different form of divisions में एक correlation दिखाता है. मतलब आप ये चार्ट देखिए, आपको इससे समझ में आ जाएगा कि what do you mean by organogram. Organogram में हम क्या कर रहे हैं? See, there is this chief commander. Now उस chief commander के further divisions है safety officer और PR assistant. Then we have further teams, planning, operations, delivery, HR services. Then within those teams हमने क्या किया? हमने सारी एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करके एक सिंगल स्ट्रक्चर में ग्राफिकली उसे डिफाइन कर दिया. तो ऑर्गेनोग्राम क्या होता है? नथिंग बट अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन. It displays functions division. It allows people ki whether their rights or responsibilities are set properly or not. It helps people to understand the structure of the organization. It helps manager to identify talented workers who haven't been जिनका potential अच्छे से tap नहीं ही हुआ है. They are further being tapped. Okay. Please go through this diagram and I'll start within a minute. प्लीज एक बार इस डायग्राम को अच्छे से देखिए और आस्क मी योर क्वेरीज इफ एनी. देखिए टूट गई है. मेरी क्लास चल रही है बेटे, रोशन से पहन ले जा. ओके, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, वी हैव दिस ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर जो मैंने आपको फर्स्ट टाइम नहीं बताया था ना. आपको मैंने ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर डिस्कस किया था, तो आई टोल्ड यू देयर आर 6 पार्ट्स. ट्रेडिशनल, फ्लेटार्की, मैट्रिक्स, फंक्शनल, ये सब मैंने आपसे डिस्कस किया था ना. तो उसमें ट्रेडिशनल फर्स्ट पार्ट था that which I didn't discuss from with you. Now traditional structure होता है जो conventionally आपका organization structure चला आ रहा है, जिसमें 3 तरह के flows हैं, line and staff and functional. सबसे पहले हम बात करते हैं line organization की, जो सबसे पुरानी तरह की traditional organization हमारी चली आ रही है. टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडल लेवल मैनेजमेंट एंड बॉटम लेवल मैनेजमेंट. एक हायरार्की है दैट वी फॉलोज. देयर इज द स्केलर चेन प्रिंसिपल, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ कंट्रोल, देयर इज चेन ऑफ कम्युनिकेशन, देयर इज स्पैन ऑफ मैनेजमेंट एंड देयर इज नो स्कोप फॉर मैनेजरियल स्पेशलाइजेशन. तो यहाँ पर टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या कर रही है? टॉप लेवल मैनेजमेंट फर्दर मिडल लेवल मैनेजमेंट को डिफाइन कर रही है. मिडल लेवल मैनेजमेंट फर्दर लोअर लेवल मैनेजमेंट को, उसके रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डिफाइन कर रही है. सो देयर इज दिस हायरार्की. इट्स नॉट कि आप सीधा जाओगे और टॉप लेवल मैनेजमेंट के रूम में चले गए एंड यू कैन गो एंड टॉक टू देम डायरेक्टली. नो, देयर इज दिस हायरार्की दैट यू हैव टू फॉलो. I hope I am clear to everybody regarding line organization. Okay, so moving on to the next part, functional organization. Functional organization जो है वो थोड़ा सा आज की डेट में हम मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन का कंसेप्ट है, जिसमें वन सिंगल और सबऑर्डिनेट इज बीइंग कमांडेड बाय डिफरेंट मैनेजर्स. देखो ये डायग्राम देखो, सबसे पहले बॉडी ऑफ मेंबर्स, देन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, देन सीईओ. अब सीईओ के अंडर डिफरेंट डिपार्टमेंट के मैनेजर्स आ रहे हैं और एक सिंगल सबऑर्डिनेट को इन सब मैनेजर्स को रिपोर्ट करना है, क्योंकि अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग स्पेशलिस्ट हैं.
सो थोड़ा सा यहाँ पे क्या है ना, chaotic हो जाता है, conflicts of interest हो जाता है, क्योंकि सबऑर्डिनेट को जब आपके सर पर 8 बॉसेस बैठे होंगे तो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू वर्क, and it's very difficult for the bosses also to coordinate with each other and to get the work done with the from the subordinate. Okay, the last part is your line and staff organization, which is nothing but आपने क्या किया, आपकी सिंपल तरीके से ऑर्गेनाइजेशन डिफाइंड है, सेवरल डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं, लेकिन जहां पर भी आपको स्पेशलाइज्ड एक्सपर्ट की एडवाइस की जरूरत है, यू आर हायरिंग देम। जैसे मार्केटिंग है, मार्केटिंग को कंटेंट डेवलपर चाहिए, मार्केटिंग को एडवर्टाइजिंग एक्सपर्ट चाहिए, रिसर्च ऑफिसर चाहिए, तो वो किसको रेफर करेगा? स्पेशलाइज्ड स्टाफ को। सिमिलरली प्रोडक्शन मैनेजर को ICWAI का थोड़ा सा हेल्प चाहिए, या सीईओ को पर्सनलाइज सेक्रेटरी चाहिए, PA पर्सनलाइज सेक्रेटरी, CS टैक्सेशन एक्सपर्ट। तो ये सब जब एक्स्ट्रा सर्विसेज को हायर करते हैं तो उसको हम स्टाफ बोलते हैं, स्पेशलाइज्ड स्टाफ। ओके, सो आई होप आई एम क्लियर विद दिस concept. Any problem in this? Please let me know किसी को किसी भी concept में problem है, and meanwhile I'm sharing the PPT on the group. Let me add few students. Give me a minute. Hello friends. Yes. Hello friends. Okay, I'm sending. I hope जिनको भी मैंने लिंक सेंड करा है वो they are added into the group. Okay, I'm sending the PPT. Please एक बार आप लोग चेक कर लीजिए whether you have received it or not. Then I will end my class. This is chapter number 11 that we are doing right now. Okay, so I am ending my class. I have sent you the PPTs on group. Please go through these PPTs and we'll meet on Monday. I will reschedule my class because Monday ko I will take your class so that we can finish the entire syllabus within the next week. Okay? Thank you, class.